Hi everyone, welcome back to our channel. We have already solved all the questions of maths and reasoning for CSAT 24. So this video is about comprehension. So in this video, I am going to solve all comprehension questions. To be honest, this year comprehension was a little more difficult than last year. There were some passages, where the interpretation of passages itself was a little difficult and the options were also confusing. So I would call this as the moderate to difficult section for any CSAT that has happened so far, to be honest. Okay, but nevertheless, it is important that this is the very important section. It will continue to appear for a long period of time in CSAT. So let us start looking at it. First question for today from comprehension. Now, this is the sequence for this video is for set B. But in this particular question, I have pulled it at the top because this is the most difficult paragraph according to me in this paper. So let us look at the paragraph, look at the question and try to solve it. So I will first explain you the paragraph. This is related to economics. So what is it saying? As inflation rises, even governments previously committed to budget discipline are spending freely to help households. तो होता क्या है ना कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है मतलब प्राइसेस बढ़ते हैं, राइट, then people's purchasing power goes down. Okay, and they are expected to pay more for the same set of goods. That means their purchasing power goes down. In this situation, governments typically give some aid to the people. That aid can come in the form of subsidies or various schemes that government has. So government starts putting more funding in helping people. So they start giving more subsidies. They kind of put more funding into the various beneficiary schemes that they have come out with to help people to deal with these rising prices. So even if some governments have a budget discipline, now budget discipline is, some governments are very strict about where they want to spend money and उसके ऊपर अपना एक टाइट कंट्रोल रखा जाता है. तो ऐसे गवर्नमेंट भी आर स्पेंडिंग फ्रीली टू हेल्प हाउस होल्ड. सो ऐसे गवर्नमेंट भी सब्सिडीज और स्कीम के ऊपर लोगों को हेल्प करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं. हायर इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस्ड बाय सेंट्रल बैंक्स आर सपोज टू हेल्प प्रोड्यूस मॉडेस्ट फिस्कल ऑस्टेरिटी. Because to maintain stable debts while paying more to borrow, governments must cut spending or raise taxes. Now understand what this sentence is saying. Okay, so there is this central bank. In Indian scenario it is RBI, right? तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना तो RBI will increase the interest rate. तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है कि लोगों को लोन एक्सपेंसिव बन जाता है. दैट मीन्स दे ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्पेंडिंग लेस. तो जैसे ही कोई मोबाइल खरीद रहा है या स्कूटर खरीद रहा है, कार खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो उनका वो एबिलिटी जो है खरीदने का वो कम हो जाएगा क्योंकि लोन महंगे हो जाएंगे. तो डिमांड कम हो जाएगा और जैसे ही डिमांड कम हो जाएगा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा. दैट इज़ द लॉजिक ऑफ राइजिंग interest rate by any central bank to control inflation. Now what this sentence is saying कि एक फिस्कल ऑस्टेरिटी लाने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेज करते हैं. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट अल्सो पेज इंटरेस्ट टू सेंट्रल बैंक. उनसे जो लोन लिया है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी वो इंटरेस्ट पे करते हैं. तो ये इंटरेस्ट का क्वांटम भी बढ़ता है अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है. ओके, now what it says, because to maintain stable debts while paying more to borrow, governments must cut spending or raise taxes. So what happens is कि गवर्नमेंट का पैसा इधर भी जा रहा है, गवर्नमेंट का पैसा जाना इधर भी बढ़ गया अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, राइट. तो अगर आपको उतना ही डेट रखना है, ओके, तो आपको जो इधर जा रहा जो आपका पैसा है गवर्नमेंट का वो इंटरेस्ट में उसको डालना पड़ेगा. मतलब इधर का स्पेंडिंग उसका कम हो जाएगा. तो दैट्स वाई इट इज सेइंग दैट कि डेट को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है, कि और ज़्यादा डेट ना ले, उतना ही स्टेबल रखे, लेकिन उतना ही डेट स्टेबल रखने के लिए उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए. ओके, तो इट्स एबिलिटी टू स्पेंड ऑन दिस स्कीम्स गोज डाउन. ओके, तो गवर्नमेंट्स मस्ट कट स्पेंडिंग. तो ये स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट का उसको नीचे आना पड़ेगा क्योंकि इसका जो एक पार्ट है
वो उसको अभी इंटरेस्ट में डालना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसको अपना इनकम बढ़ाना पड़ेगा। इनकम कैसे बढ़ेगा? टैक्सेस बढ़ाने से। तो ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाओ, फिर ज़्यादा इनकम आ जाएगा, फिर वो इस स्कीम के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ लिया। नाउ विदाउट फिजिकल बैकअप मॉनिटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। तो फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी, तो मॉनिटरी पॉलिसी का जो पर्पज है, ओके, गवर्नमेंट का मॉनिटरी पॉलिसी में ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंटरेस्ट रेट है ना। तो आरबीआई इज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट और इंक्रीजिंग इट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। लेकिन जो फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट का, दैट इज वेयर इट स्पेंड्स मनी, टैक्सेशन पॉलिसी, एक्चुअल मनी का ट्रांजैक्शन, ये पॉलिसी का बैकअप इसको होना चाहिए। इन अ सेंस दैट कि जो एक्सपेक्टेड है दैट गवर्नमेंट विल पे मोर इंटरेस्ट एंड डू द लेस स्पेंडिंग। क्योंकि जो ज़्यादा स्पेंड करेंगे ना तो लोगों के पास स्पेंडिंग बढ़ जाएगा, मतलब उनका डिस्पोजेबल इनकम कम नहीं होगा प्राइसेस बढ़ने के बावजूद, क्योंकि वहाँ उनको बेनिफिट मिल रहा है, हेल्थ केयर में मिल रहा है, राशन में मिल रहा है, वगैरह वगैरह। तो डिमांड इकोनॉमी से कम नहीं होगी, इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहेगा या फिर जो बढ़ चुका है वो कंट्रोल में नहीं आएगा। तो आरबीआई चाहती है कि गवर्नमेंट इधर कम स्पेंड करे, इसलिए उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। लेकिन गवर्नमेंट का जो फिजिकल पॉलिसी है, जो डिटरमाइन करता है कि टैक्सेस से क्या करना है, कहाँ पे कितना पैसा डालना है, कहाँ पे उसका प्रायोरिटी स्पेंडिंग करना है, उसका बैकअप चाहिए मॉनिटरी पॉलिसी को। वरना ये बैकअप नहीं होगा तो फिर ये मॉनिटरी पॉलिसी का इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, इट विल लूज इट्स ट्रैक्शन। हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम इन्फ्लेशनरी नॉट डिसइन्फ्लेशनरी because they simply lead governments to borrow more to pay rising debt service cost। तो ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ओके, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा, उल्टा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो ये सर्विस तो कर रहा है, राइट, लेकिन वो कैसे सर्विस कर रहा है? तो और लोन लेकर, तो इट कैन ऑलवेज टेक मोर लोन्स एंड देन पे दिस इंटरेस्ट रेट, है ना। तो ये गवर्नमेंट का बोरोइंग बढ़ जाएगा, दैट मीन्स उसका डेट बढ़ता चला जाएगा, ओके, स्टेबल नहीं होगा। सिंपली लीड गवर्नमेंट्स टू बोरो मोर टू पे राइजिंग डेट सर्विस कॉस्ट। डेट सर्विस करना मतलब उसका इंटरेस्ट पे करना, उसको पे करने के लिए गवर्नमेंट का डेट बढ़ता जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा बोरो करेगा। उसको ये कम नहीं करना है, अगर गवर्नमेंट ने ये कम नहीं किया तो उसको ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा या टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, ओके। तो बेसिकली ये सब होने से अगर आरबीआई का मतलब सेंट्रल बैंक का पर्पस जो था, वो अगर गवर्नमेंट के फिजिकल पॉलिसी से बैकअप नहीं हुआ एंड डिस्पाइट ऑफ हैविंग मोर आउटफ्लो ऑफ इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू स्पेंड फॉर हेल्पिंग पीपल, दैट मीन्स लोगों का डिस्पोजेबल इनकम कम नहीं होगा, दैट मीन्स डिमांड कम नहीं होगी और इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। द रिस्क ऑफ मॉनिटरी अनमूरिंग, अनमूरिंग मतलब उखाड़ के फेंक देना, जनरली शिप के बारे में यूज करते हैं ये वर्ड। मॉनिटरी अनमूरिंग इज ग्रेटर व्हेन पब्लिक डेट राइजेस बिकॉज इंटरेस्ट रेट बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू बजट डेफिसिट्स। तो होता क्या है कि पब्लिक डेट जब बढ़ता है तब मॉनिटरी अनमूरिंग होता है, मतलब डिस्टर्बेंस होता है मॉनिटरी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट रेट कॉम्पोनेंट है वो बजट के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, बजट डेफिसिट में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, ओके। दिस इज द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ। तो थोड़ा समझने में मुश्किल है, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है। तो इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स कंसेप्ट देन ओनली आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। इन्फरेंसेस और इन्फरेंस, तो उस पर हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? स्टेटमेंट, सेंट्रल बैंक्स कैनॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग, ओके। तो ये सही है, बट क्या एक यही तरीका है कि ये कैन नॉट, ये एक क्या बोलते हैं हम लोग उसको कि एक्सट्रीम वर्ड है, ओके। तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये तो तरीका नहीं है कि बजटरी बैकिंग से ही इन्फ्लेशन कम आएगा। देर आर अदर वेज टू डू इट एंड दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
पैराग्राफ ऐसे तो नहीं बोल रहा है कि ये नहीं किया तो नहीं होगा. Okay? The effects of monetary policy depend on the fiscal policies pursued by the government. Very much, it is clearly said here. Without the fiscal backup, monetary policy eventually loses its traction. So this is the right statement. So answer to this question is B2 only. Okay. So this is the most difficult paragraph according to me. Let us go to the next one. मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा डार्क करता हूँ. The history of science is the real history of mankind. In this striking epigram, a 19th century writer links science with its background. एपिग्राम मतलब क्या? एपिग्राम मीन्स ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कोई विरोधाभास हो. ओके, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट हाफ में कुछ कहा गया हो और सेकंड में उसको अपसाइड डाउन टर्न किया गया हो, जिसमें सार्केज्म हो, जिसमें कोई ट्विस्ट हो, ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं एपिग्राम. तो इसका एक एग्जांपल है कि जैसे हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आई कैन मेक और फोर्ड कैन मेक एनी कार ऑफ एनी कलर एज लॉन्ग एज इट इज़ ब्लैक. ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज एनी कलर, सेकंड पार्ट सेज एज लॉन्ग एज इट इज़ ब्लैक. तो ये एक सार्केज्म हो गया या फिर एक ट्विस्ट आ गया. तो इस तरह के स्टेटमेंट को कहते हैं एपिग्राम. अनदर एग्जाम्पल इज आई कैन क्विट स्मोकिंग एनी टाइम बिकॉज आई हैव डन इट मेनी टाइम्स. जैसा मार्क ट्वेन ने कहा था शायद, सिगरेट में आसानी से छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कई बार कर चुका हूँ. तो दिस स्टेटमेंट फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. तो कॉन्ट्राडिक्शन का जो फैक्टर है ना, इस तरह के स्टेटमेंट को कहते हैं एपिग्राम. ओके, या फिर और एक स्टेटमेंट है कि आई कैन रेजिस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन. ओके, सो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एपिग्राम. तो इफ दिस इज एन एपिग्राम, इसका मतलब इसमें ट्विस्ट है. ये जो कहना चाहता है इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है. So the history of science is the real history of mankind. That means history of science is not history of mankind. Okay, that is the first statement कि ये same नहीं है because this is an epigram. Like most epigrams, its power lies in emphasizing by contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. तो इसमें भी आसानी से एक ट्रूथ ओवरलुक किया जा सकता है. इन दिस केस इट इज इजी टू ओवरलुक द रिलेशंस बिटवीन साइंस एंड मैनकाइंड एंड टू ट्रीट द फॉर्मर एज सम एब्स्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी which can sometimes be praised for its beneficial influences but frequently and conveniently blamed for horrors of war. Okay, so basically people equate the history of science with history of mankind, which is not true according to author. और इसमें ट्रूथ क्या ओवरलुक हो जाता है कि हम लोग साइंस और मैनकाइंड का जो रियल रिलेशनशिप है उसको भूल जाते हैं या इग्नोर करते हैं, ओवरलुक कर देते हैं. एंड हम साइंस को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि कभी उसके बेनिफिट के लिए हम उसको प्रेज करते हैं और कभी उसकी बुराइयों के लिए कन्वीनियंटली अपने हिसाब से, अपने को जब कन्वीनियंट चाहिए तब उसे ब्लेम करते हैं वॉर के हॉरर्स के लिए. मतलब वॉर में जो न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन जो साइंस की वजह से है, तो हम कहते हैं कि इस सिनारियो में साइंस तो बहुत ही बुरा है और जो साइंस के बेनिफिट मैनकाइंड को मिलता है तब हम कहते हैं कि साइंस बहुत अच्छा है. ओके, और उसका जो रिलेशनशिप है साइंस का और मैनकाइंड का, इसको हम ओवरलुक करते हैं द रियल रिलेशनशिप को, और हमेशा दोनों को इक्वेट करते रहते कि हर चीज़ अच्छा हुआ तो साइंस, बुरा हुआ तो साइंस. साइंस एंड मैनकाइंड कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एट मेन्स कन्वीनियंस. तो अपने हिसाब से तुम नहीं चल सकते. साइंस और मैनकाइंड को जब चाहे अच्छा बुरा रिलेशनशिप जो उनका है उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते. Yet we have seen that in spite of countless opportunities of improvement, the opening years of present period of civilization have been dominated by international conflict. तो ऑथर ये कहना चाहता है कि अगर ऐसे होता तो जब ओपनिंग मतलब इनिशियल पीरियड ऑफ द प्रेजेंट सिविलाइजेशन था, कुछ सम थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, तभी तो साइंस इतना डेवलप नहीं था. फिर तब क्यों वॉर होते थे, तब क्यों हजारों लाखों लोग मारे जाते थे वॉर के अंदर, राइट? तभी तो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट होते थे. तो हर चीज़ साइंस पे ब्लेम करना ठीक नहीं है और अपने कन्वीनियंस से उसको अच्छा या बुरा डिसाइड करना ठीक नहीं है. ये ऑथर यहाँ पे कहना चाहता है. और उसका प्रूफ ये है कि जब साइंस नहीं था एट द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, तभी भी तो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट था,
तभी तो बड़े बड़े वॉर हुए थे, तभी भी लाखों लाखों लोग वॉर में मारे जाते थे, तब तो साइंस नहीं था। इज दिस द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस और डज द फॉल्ट लाइज एल्सवेयर? तो दिस इज अ रेटोरिक क्वेश्चन। रेटोरिक क्वेश्चन मतलब क्या कि ऐसा क्वेश्चन जिसका हमें जवाब नहीं चाहिए। जनरली पॉलिटिकल लीडर में ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे लोकमान्य तिलक जी ने पूछा था अंग्रेज गवर्नमेंट को कि क्या आपका सर ठीक से चल रहा है, तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हाँ हमारा ठीक से चल रहा है हमारा दिमाग। वो एक रेटोरिक क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं रेटोरिक क्वेश्चन। यहाँ पे क्या रेटोरिक क्वेश्चन है कि ये सब जो हो रहा है ये क्या साइंस की प्रोग्रेस के कारण है या इसका कोई और अन्य कारण है, और फॉल्ट लाइज एल्सवेयर। ओके, इसका मतलब ऑथर कहना चाहता है कि साइंस नहीं है, साइंस को हम जैसे यूज करते हैं उसकी वजह से हॉरर्स होते हैं वॉर के, और सेकंडली उसका जो ओरिजिन है उसका कारण तो साइंस है ही नहीं, फॉल्ट तो हमेशा से मैनकाइंड के पास रहा है, उनकी सोचने के तरीके के कारण वॉर होते हैं, क्योंकि जब साइंस नहीं था तभी भी वॉर होते थे। क्वेश्चन क्या है? एम्फेटिकली कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। इसमें से एम्फेटिकली मतलब बहुत स्ट्रांगली कन्वेड क्या मैसेज ऑथर देना चाहता है? विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट टिल टुडे। बिल्कुल गलत। ऐसा तो बोला नहीं है कि अगर साइंस नहीं होता तो मैनकाइंड एक्सटिंग्विश हो जाती, मतलब एग्जिस्ट टिल टुडे मतलब कभी ना कभी बीच में गायब हो जाती। पता नहीं क्या होता कि अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं होता, शायद हम अभी तक जंगल में ही रहते, लेकिन रहते ज़रूर, पूरे एक्सटिंग्विश नहीं हो जाते। और वैसे भी इस पैराग्राफ में तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज़ द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। नहीं, ये तो जो पैराग्राफ में बताया गया है उसके अपोजिट है, क्योंकि पैराग्राफ ये प्रूव करना चाहता है कि जो भी अच्छा बुरा हुआ है ना वो इंसान की सोचने की तरीके से वजह से हुआ है, और साइंस ने उसमें हेल्प किया है, अच्छे में भी हेल्प किया है बुरे में भी हेल्प किया है, लेकिन साइंस की वजह से नहीं हुआ। तो फिर साइंस मैनकाइंड की डेस्टिनी क्यों डिसाइड करेगा? तो द पैराग्राफ डजंट से कि साइंस विल अल्टीमेटली डिटरमाइन डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। इनफैक्ट वो बोल रहा है कि साइंस नहीं करेगा, इंसान खुद करेगा अपनी डेस्टिनी, और साइंस उसको हेल्प करता रहेगा जैसे ही वो सोचता हो। एंड दैट्स वाई अगर हिस्ट्री ऑफ साइंस इज नॉट रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, the future of mankind will also not be related to science or not determined by science. So answer to this question is D, neither 1 nor 2. Next one. Based on the above passage, following assumptions have been made. जब assumption बोलते हैं तो हम true और false की बात करते हैं कि क्या पैराग्राफ के बेस पर यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। The horrors of modern life are the inevitable result of the progress of science. बिल्कुल नहीं, वो तो कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर नॉट बिकॉज ऑफ साइंस, इट इज बिकॉज ऑफ पीपल, एंड द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट। तो ये बिल्कुल सही है, राइट? क्योंकि जब चाहे इंसान साइंस को अच्छा कहता है, जब चाहे बुरा कहता है, तो इंसान डिटरमाइन करता है कि साइंस क्या है, अच्छा है या बुरा है। इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड ऑफ इट, ये ओवरलुक किया जाता है और साइंस को ही ब्लेम किया जाता है। Okay, that's why this statement is true. Answer to this question is B, 2 only. Next one. Only with long experience and opening of his wares on many a beach where his language is not spoken will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice. बड़ा स्टेटमेंट है। कहना क्या चाहता है कि जो मर्चेंट है, जो अलग अलग लैंड पे जाके ट्रेडिंग करते हैं, उनको जब लॉन्ग एक्सपीरियंस होगा किस चीज़ का? ओपनिंग ऑफ हिज वेयर्स ऑन मेनिया बीच। वेयर्स मतलब उसका जो गुड्स है, ओके। जैसे इस पर से ही वर्ड आया ग्लास वेयर, राइट, या किचन वेयर। तो वेयर मतलब गुड्स, स्पेशली दोज गुड्स हु आर अप फॉर सेल, ट्रेडिंग गुड्स, ओके। तो अलग अलग जगह जाके, ऐसी जगह जहाँ पे उसकी भाषा भी ना बोली जाए, वहाँ पे जाके मर्चेंट को ये पता चलेगा, विल कम टू नो, कि वो क्या जानता है, अपने साथ क्या लेके आया है, और क्या लोकल है। पैरोकियल मतलब लोकल, पैरोकियल इज लोकल,
तो वो लेके क्या आया है और वहाँ पे लोकल ऑलरेडी क्या है या उससे अलग क्या है, एंड व्हाट इज़ यूनिवर्सल इन हिज चॉइस। तो वो जो लेके आया है वो शायद यूनिवर्सल है, राइट, और जो वहाँ पे है वो लोकल है। उस जगह पे जहाँ पे वो पहुँचा है वहाँ की चीज़ें जो है वो लोकल है, राइट, और शायद वो जो अपने साथ कैरी कर रहा है वो यूनिवर्सल है। किस चीज़ की बात हो रही है? सच डेलिकेट गुड्स एज जस्टिस, लव, ऑनर, courtesy, and indeed all the things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled, and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in the foreign land। का मतलब है कि ये जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ है, जस्टिस, लव, ऑनर, कर्टसी, ये है तो यूनिवर्सल, लेकिन उसको लोकल बनाया जाता है। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल रिस्पेक्ट और कर्टसी, इंडिया में मैं नमस्कार करूँगा, जापान में मैं बो करूँगा, मिडल ईस्ट में मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, राइट, यूएस में मैं शेक हैंड करूँगा। है तो हर जगह रिस्पेक्ट ही, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, उसको लोकलाइज तरीके से रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका बनाया गया है। तो समटाइम्स दैट मैट बी अनरिकग्नाइजेबल, मतलब कोई बंदा जापान का मिडल ईस्ट चले जाए तो वो बो करेगा तो मिडल ईस्ट का जो अरब है उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो उसे रिस्पेक्ट कर रहा है ना, या फिर ये अस्सलाम वालेकुम बोलेगा तो जापान गाय विल नॉट अंडरस्टैंड कि वो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। इट मे नॉट बी रिकग्नाइजेबल if you meet them in foreign land, and the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at ease among their fellows। तो कह रहा है कि आर्ट ऑफ लर्निंग फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, तो जो मैं कैरी कर रहा हूँ और जो वहाँ का लोकल है, इसके बीच में जो कॉमन है, जो फंडामेंटल है, उसका लोकल मैनिफेस्टेशन जो है उसको समझने से मुझे वहाँ पे रहने में आसानी होगी। ओके, ये लास्ट स्टेटमेंट में ऑथर कहना चाहता है कि इट विल बी ईजियर फॉर द मर्चेंट टू सेटल डाउन और डू द ट्रेडिंग इन दैट फॉरेन लैंड इफ ही अंडरस्टैंड्स हाउ these universal values or fundamental common values are manifested locally in that particular foreign land। Question क्या है? When we meet other people while we travel, we learn to differentiate between imagination, understanding, बिल्कुल नहीं, communities and nationalities, बिल्कुल नहीं, local values and universal values, correct, friends and foes, local नहीं, simple question, option number C। Second question, following assumptions have been made, travel leads to an understanding of human। ट्रू हो सकता है अगर मैं ये कहूँ कि ह्यूमन क्या है, कि ह्यूमन वो है जो वो वैल्यू मैनिफेस्ट करता है, जो उसका वैल्यू सिस्टम है वो ह्यूमन है। ओके, अगर मैंने ऐसे मान लिया तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलो आगे देखते हैं। ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, बिल्कुल सही। A person with long experience in travel can resolve differences amongst people, ये गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रैवल कैन रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंग पीपल। अब ये तो नहीं किया, वो बोल रहा है कि दे कैन लिव एट ईज अमंग फेलोज, राइट, बट ये तो नहीं कह रहा है कि वो उनके बीच के डिफरेंसेस रिजॉल्व करेगा, ये तो नहीं कह रहा है। उतना उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि वो लोगों के बीच के डिफरेंस को रिजॉल्व कर सके, वो बस खुद से ठीक से रह पाएगा, इजीली पीसफुली रह पाएगा नए लोगों के साथ भी, अगर वो वहाँ के और अपने कॉमन वैल्यूज़ को एक्सप्लोर कर सके, उसको समझ सके। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1 and 2 ऑप्शन ए, क्योंकि 3 तो गलत है, तो ये तीनों भी ऑप्शन गलत है, इसलिए मैं इसको सही मान के ऑप्शन 1 and 2 मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट, by the time children reach class 8, the bulk of them tend to be in the range of 13 years to 15 years। तो क्लास 8 तक आने से 1315 साल के बन जाते हैं, है ना। But in our country, about a quarter of all children in class 8 struggle with reading simple text, and more than half are still unable to do basic arithmetic operations like division। तो 1/4 बच्चे जो है वो टेक्स्ट पढ़ भी नहीं सकते, और आधे बच्चे जो है वो बेसिक मैथ्स नहीं कर सकते, डिवीजन जैसा, क्लास 8 के बच्चे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पुअर है, ये बताया जा रहा है कि 8वीं में आने तक भी बच्चा ना ठीक से पढ़ पा रहा है, ना ठीक से बेसिक मैथमेटिक्स कर पा रहा है।
आगे, एवरी ईयर अबाउट 25 मिलियन यंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल मूव इन टू द लाइफ दैट लाइज फॉर देम बियॉन्ड कंपल्सरी स्कूलिंग। बोलता है हर साल 25 मिलियन बच्चे जो है वो लाइफ में एंटर कर देते हैं कंपलसरी स्कूलिंग के बाद। मतलब मिनिमम स्कूलिंग के बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं और कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। 25 मिलियन बच्चे काम करना शुरू देते हैं या बेसिकली स्कूल छोड़ देते हैं। वॉट एवर लाइफ हैज स्टोर इन स्टोर फॉर देम दे एंटर इन टू दैट। दे कैनॉट एंटर द वर्क फोर्स एटलीस्ट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर टिल दे आर 18। 18 साल तक वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम 13 से 15 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो 18 साल तक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं ले सकते क्योंकि वो मिनिमम एज है काम करने का। फॉर मेनी फैमिलीज दिस चिल्ड्रेन आर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज एवर टू गेट दिस फार इन स्कूल। मतलब 8वीं तक भी आने वाले बच्चों में कई सारे मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके फैमिली में वो पहला बच्चा ऐसा है जो उस क्लास तक पहुंचा हो स्कूल में। फॉर मेनी फैमिलीज दिस चिल्ड्रेन आर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज एवर टू गेट दिस फार। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन एक्सपेक्ट दैट सच ग्रेजुएट्स, अब देखो ये ग्रेजुएट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है ये वाला, ओके, फ्रॉम स्कूल विल गो ऑन टू हायर स्कूल एंड कॉलेज। तो ज़्यादातर बच्चों की इच्छा होती है कि वो स्कूल में, और उनके पेरेंट्स के भी, वो स्कूल में हाई स्कूल में जाए या फिर कॉलेज में जाए। यहाँ पे ग्रेजुएट्स क्यों बोला है, सार्केस्टिकली बोला है। ओके, so when you put something in single inverted comma, the meaning is not to be taken literally. Okay, it has to be taken in a alternate way, in a little more sarcastic way, कि उनको ग्रेजुएट बुलाया जा रहा है यहाँ पे, जबकि वो असलियत में ग्रेजुएट है नहीं। ओके, तो उनका एजुकेशन वहीं पे ख़त्म हो गया तो उनको ग्रेजुएट बुला दिया। तो ये एक सार्केस्टिक वे ऑफ एक्सप्रेशन है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। कह क्या रहे हैं ऑथर यहाँ पे, उनके पेरेंट्स और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हाई स्कूल और कॉलेज में जाए। हार्डली एनी वन वॉन्ट्स टू गो बैक टू एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में बच्चे जाना नहीं चाहते। ऑन द अदर हैंड एबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज आर फार लोअर देन दे शुड बी इवन बेस्ड ऑन करिकुलर एक्सपेक्टेशन ऑफ क्लास 8। तो एक तरफ ये जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर में नहीं जाना चाहते, और दूसरी तरफ ऑन अदर हैंड दे डू नॉट हैव द कॉम्पिटेंसीज इवन फॉर अ क्लास 8 स्टूडेंट। ना उसको ठीक से पढ़ने आ रहा है, ना उसको ठीक से बेसिक मैथमेटिक्स करने आ रहा है। तो जितना क्लास 8 में आना चाहिए उतना भी नहीं आ रहा है। तो एक बड़ी ही विशियस साइकिल में ये बच्चे फंस जाते हैं। करना तो चाहते हैं वो आगे कॉलेज और हाई स्कूल, लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका कॉम्पिटेंसी उतना डेवलप भी नहीं हुआ है। और अगर स्कूल छोड़ दिया तो एग्रीकल्चर में भी नहीं जाना चाहते, और एम्प्लॉयबल भी नहीं है क्योंकि उनके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है। क्वेश्चन देखो, अजम्पशंस पूछा है। फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव ग्रेटर रोल देन गवर्नमेंट्स। बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, इसमें ये पैराग्राफ कोई बात नहीं कर रहा है। ये सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा है, सॉल्यूशन कुछ नहीं बता रहा है। स्कूल करिकुलम दैट conforms to today's requirements and is uniform for the entire country may address the issue brought out। बिल्कुल नहीं। क्या ये पैराग्राफ ये कह रहा है कि there is a problem with curriculum? No. The problem is there is a curriculum, but even that curriculum people or students are not able to grasp properly and become very clear and develop good understanding depending on curriculum until class 8। okay, तो उसके कॉम्पिटेंसी की बात की जा रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है। ऐसा तो नहीं कहा कि ये करिकुलम खराब है। तो करिकुलम सुधारने से, देश में एक साथ बनाने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी ये पैराग्राफ करिकुलम की बात ही नहीं कर रहा है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 और 2। नेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया क्या है? टोटल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इश्यू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्कूल चिल्ड्रेन। नो। सोल्यूशन ये बताया नहीं है कि पॉवर्टी उसका रीज़न है। मॉनिटरी इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स इज अ स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव द चिल्ड्रेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस। नो। मॉनिटरी इंसेंटिव देना चाहिए, या फिर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरी इंसेंटिव्स ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कुछ भी पैराग्राफ में बताया नहीं गया है। Public policy should ensure that competencies and achievements of young people are aligned with their expectations। ये एक बहुत ही जनरल ब्रॉड सॉल्यूशन टाइप स्टेटमेंट है। स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं दिया गया है कि जनरली पब्लिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों का जो एक्सपेक्टेशन है यंग पीपल का, उनका जो कॉम्पिटेंसीज है और उनका जो अचीवमेंट्स है
वो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होना चाहिए, इस तरह से पॉलिसी होनी चाहिए। ओके, तो ये स्टेटमेंट मुझे बराबर लग रहा है क्योंकि ये जेनरिक है, ये कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। ओके, लास्ट वन, इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड अनलेस सम स्कूल पास आउट्स गो बैक टू एग्रीकल्चर। यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि हार्डली एनी वन वॉन्ट्स टू गो बैक टू एग्रीकल्चर, ये नहीं बोला कि इसकी वजह से इंडिया पीछे पड़ रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड नाउ दैट साइंस हैज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमको तो अभी पता है कि साइंस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द आइडिया वुड नॉट हैव अकर्ड टू न्यूटन और गैलीलियो, दे थॉट ऑफ साइंस एज एन अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज एंड द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे एक्नॉलेज्ड वाज टू टेल द ट्रुथ। तो गैलीलियो और न्यूटन जैसे जो शुरुआती साइंटिस्ट थे, उनको तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई बात ही नहीं था। वो सिर्फ सच को बाहर लाना चाहते थे कि उनको लगता था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सच को ढूंढे और दुनिया के सामने एक्सप्लेन करे। द आइडिया दैट साइंस इज अ सोशल एंटरप्राइज इज मॉडर्न एंड इट बिगिंस एट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो साइंस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या साइंस एक सोशल इम्पैक्ट का स्ट्रीम है, ये जो थॉट प्रोसेस है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वक्त चालू हुआ। वी आर सरप्राइज दैट वी कैनॉट ट्रेस अ सोशल सेंस फर्दर बैक because we nurse the illusion that the industrial revolution ended a golden age। हम सरप्राइज होते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले साइंटिस्ट ऐसे कैसे नहीं सोचते थे दैट साइंस हैज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसका रीज़न क्या है कि हम एक इल्यूजन मेंटेन करते हैं या इस इल्यूजन में रहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साइंस का गोल्डन एज खत्म हो गया। ओके, तो ये है पैराग्राफ। क्वेश्चन क्या है? बेस्ट रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट द साइंस। साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट, बिल्कुल नहीं। साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन पीपल, ये भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी ऐसे तो इसमें कहीं बताया नहीं गया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज मेड पॉसिबल बाय एडवांसमेंट ऑफ साइंस, ठीक लग रहा है मुझे। ओके, और साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर। तो ये जो है ना, ये ठीक है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्टन पार्ट ऑफ दिस पैसेज कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और साइंस का क्लोज लिंक है और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन साइंस के वजह से ही हुआ। बट इफ़ यू लुक एट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बेस्ट रिफ्लेक्ट द थिंकिंग, थिंकिंग इन द एंटायर पैराग्राफ ये है कि पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों है, राइट। और साइंस को ट्रूथ से काम करना ही चाहिए, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ओके, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, today if we consider cities such as New York, London and Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy systems approach were imposed on their precincts। तो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जैसे जो बड़े बड़े आइकॉनिक सिटीज़ हैं, कि वो आइकॉनिक क्यों बने? क्योंकि जब उनका प्लानिंग किया जा रहा था तभी सिस्टम्स अप्रोच को इम्प्लीमेंट और यूज़ किया गया था, हेवी सिस्टम्स अप्रोच को यूज़ किया गया था। कहाँ पे? उनके प्रेसिंक्ट्स पे। प्रेसिंक्ट्स मतलब क्या है? प्रेसिंक्ट्स का मतलब है डिस्ट्रिक्ट्स या एरिया, ठीक है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। तो एक टाउन के जो एरियाज होते हैं ऑन वेरियस क्राइटेरिया, राइट। तो जनरली अगर कोई एरिया में पुलिस स्टेशन है तो उसे पुलिस प्रेसिंक्ट कहते हैं, ठीक है। या फिर इलेक्टोरियल प्रेसिंक्ट, तो हमें सबको मालूम है कि इलेक्शन के लिए अलग अलग वार्ड्स बनाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं इलेक्टोरल प्रेसिंक्ट। द बैकबोन ऑफ द सिस्टम्स थ्योरी इज द प्रोसेस ऑफ translating social, spatial and cultural desirables into mathematical models using computing, statistics, optimization and an algorithmic way of formulating and solving problems। तो सिस्टम्स थ्योरी क्या कहती है? जो सिस्टम्स थ्योरी इसमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है कि सारी चीज़ें, चाहे वो सोशल, स्पेशल और कल्चरल डिज़ायरेबल हो, उनको लेके उसको सिस्टमेटिकली मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटिंग का यूज़ करके फिर उसका फॉर्मुलेशन करके कोई जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाएगा, टाउन प्लानिंग के प्रॉब्लम्स।
The early universities of the West, which began to train professionals in planning, spawned some of the most ingenious planners. राइट, मतलब उन्होंने शुरुआत की थी कि जो अच्छे अच्छे लोकल प्लानर्स थे और शार्प इंटेलिजेंट, इंजीनियर्स का मतलब है शार्प इंटेलिजेंट इनोवेटिव प्लानर्स, उनको अपनी यूनिवर्सिटीज़ में लाके वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपने प्लानिंग प्रोफेशनल को ट्रेन करना शुरू कर दिया। ओके, और कौन थे ये लोग? दोज वेयर एक्सपर्ट्स इन दिस डोमेन्स। विच डोमेन्स? ये सारे डोमेन, सोशल, कल्चरल, स्पेशियल मतलब आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, अल्गोरिथम्स, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ये सारे डोमेन में जो प्लानर्स एक्सपर्ट थे, उनको लाके यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ के वेस्ट के नए टाउन प्लानर्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से दे काइंड ऑफ डेवलप्ड अ सिस्टम्स अप्रोच इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, because these subjects were absorbed into the planning curriculum that had its roots in social science, geography and architecture. तो ये जो सारे सब्जेक्ट है ना, इनका रूट कहाँ पे होगा? सोशल साइंस में होगा, ज्योग्राफी में होगा, आर्किटेक्चर में होगा। ओके, तो ये सारे बैकग्राउंड के लोग और ये सारे बैकग्राउंड के नॉलेजेबल लोग लाके प्लानिंग का करिकुलम बनाया गया और उनको नए प्लानर्स को टीचिंग करने के लिए अपॉइंट किया गया वेस्ट में, यूनिवर्सिटीज़ में। प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट। इंडिया में प्लानिंग का सिलेबस और उसका एजुकेशन दोनों भी, मतलब प्लानिंग का प्रोसेस और उसका एजुकेशन दोनों भी वेस्ट से अलग है। अब स्टेटमेंट ओपन एंडेड है, अलग है, अच्छा है बुरा है, हम कह सकते हैं कि बुरा है क्योंकि ये तो आइकॉनिक सिटीज़ है, हमारे पास एक भी आइकॉनिक सिटी नहीं है, तो हम कहते हैं बुरा है। लेकिन बस यहाँ पे ही ऑथर ने छोड़ दिया है, हमें उसने कुछ भी नहीं बताया कि इंडिया में क्या करना चाहिए। लेट अस गो टू द क्वेश्चन। मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। सही लग रहा है ना? बोलता है कि अर्बन प्लानिंग का जो कोर्स है डाइवर्स और इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, अलग अलग डिसिप्लिन उसमें आने चाहिए और वो डाइवर्स सब्जेक्ट के बेस पे बनाना चाहिए। यही तो कहा है, क्योंकि ये 3 सिटीज़ में यही हो रहा है। इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। बिल्कुल नहीं, इंडिया के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज़ अ लोकल अफेयर विथ अ क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ फंड के बारे में भी नहीं कहा गया। विथ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन आवर अर्बन एरियाज प्लान डेवलपमेंट इन देम इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल नहीं। इंडिया में अलग क्यों है, क्यों नहीं है, इसका कोई भी डिस्कशन पैराग्राफ में है ही नहीं। ओके, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अनडाउटेडली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग assumptions, इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विथ नॉलेज रिलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। मैं इसको रॉन्ग कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ प्लानिंग के बारे में है और इसमें प्लानिंग प्रोफेशनल नहीं बोला है, अर्बन प्रोफेशनल्स बोला है। प्लानिंग प्रैक्टिस नहीं बोला है, अर्बन प्रैक्टिस बोला है, जो कि बहुत ही बड़ा टर्म है। अर्बन प्रोफेशनल्स तो सिर्फ प्लानिंग में नहीं है, हर जगह है, राइट, हर प्रोफेशन में है और हर प्रोफेशन में अर्बन प्रैक्टिस भी है। ये एक, अगर इसमें कहीं प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग प्रोफेशनल्स, अर्बन प्लानिंग प्रैक्टिस होता तो ये सही होता, वो नहीं है, इसलिए मैं इसको गलत कहूँगा। इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिस्टम्स अप्रोच। नो, वो बोल रहा है कि हमारा अलग है, लेकिन क्यों अलग है, कैपेसिटी है या नहीं है, फंडिंग है या नहीं है, अप्रोच है या नहीं है, ये सब कुछ भी इसमें डिस्कस नहीं किया है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नाइदर 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नॉट एवरी वॉइस नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस। तो इंटरनेट पे हर कोई इन्फ्लुएंसर, हर कोई आवाज़ के लिए सेम काइंड ऑफ ऑडियंस नहीं मिलता। When anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinions, they are effectively buying a louder voice. तो कहना क्या चाहता है कि इंटरनेट पे जो एंटिटीज ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा पैसा पे कर सकते हैं, उनको ज़्यादा स्पेस मिलता है, राइट, और इफेक्टिवली उनका वॉइस लाउडर बन जाता है। तो ऑथर ये कहना चाहता है कि इंटरनेट पर जो कैपिटल स्पेंड कर सकता है, उसको ज़्यादा स्पेस मिलता है, उसका आवाज़ बड़ा बन जाता है।
If political discourse in the digital sphere is a matter of outshining one's opponent till the election is won, then the quality of politics suffers. इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल डिजिटल स्फीयर मतलब इंटरनेट का स्फीयर, तो इंटरनेट पे जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है, राइट, अगर वो उसका मतलब यही है कि जब तक इलेक्शन ना जीते अपने ओपोनेंट के बारे में बात किया जाए, उसको अपोज किया जाए, तो फिर क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स तो सफ़र करेगी, क्योंकि इंटरनेट पे स्पेस किसे मिलेगी? जिसके पास पैसा है उसको मिलेगी। तो चाहे वो सही हो या गलत हो, उसकी आवाज़ लोगों तक ज़्यादा पहुंचेगी, लोग उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, और उससे जो गलत है वो भी बहुत आसानी से फैल सकता है। तो द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर्स, राइट। और ये हमने रिसेंट इलेक्शन में देखा है, राइट, कि कैसे सोशल मीडिया का स्ट्रॉन्ग यूज़ किया जाता है अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ बात करने के लिए। द फोकस ऑफ सोशल मीडिया is restricted to the promotion of content that generates more user engagement regardless of how inflammatory the content may be। मतलब कंटेंट कितना भी भड़काऊ हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि जहाँ यूज़र का एंगेजमेंट ज़्यादा है, जहाँ आईबॉल्स ज़्यादा है, वहाँ कितना भी कंटेंट इन्फ्लेमेटरी हो या मॉरली रॉन्ग हो, उसको सोशल मीडिया पहुंचाती है, ठीक है, क्योंकि उसका फोकस वो है कि जहाँ एंगेजमेंट ज़्यादा आएगा उतना उसके लिए अच्छा है, और एंगेजमेंट इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा आता है। ओके, सो दिस इज़ द पैराग्राफ। सेंट्रल आइडिया पूछा है, क्या है सेंट्रल आइडिया? कंस्ट्रक्टेड एज द मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल नहीं, इंस्टेंट एक्सेस की बात नहीं की गई है। सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशंस बट द प्रोडक्ट्स बिल्ट बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स। सही है, यही तो कह रहा है कि चाहे वो कितना भी इन्फ्लेमेटरी हो, चाहे कितना भी गलत हो, वो लोगों तक पहुंचाया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा, इसलिए वो आइडियल तो है नहीं, मॉरली भी सही नहीं है। दे आर प्रोडक्ट्स बिल्ड बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स, सब पैसों का खेल है, क्योंकि यू कैन बाय यूर स्पेस ऑन सोशल मीडिया बाय स्पेंडिंग हाई कैपिटल। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। बिल्कुल नहीं। इन टूडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ। सही है, लेकिन पैराग्राफ के रिलेवेंट नहीं है। तो आई थिंक दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। Based on the above passage, the following assumptions have been made. Internet is not inclusive enough. Correct. Because internet space is sold for money. तो वो तो ऐसा कोई डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं है जहाँ पे कोई भी जाके इक्वल उसका शेयर पा सके। पेड प्रमोशन का ज़माना चल रहा है। इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन कंट्री। बिल्कुल सही, क्योंकि इंटरनेट डिजिटल स्फीयर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन रहा है और क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफ़र कर रहा है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1/3 ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज लॉस्ट और वेस्टेड ग्लोबली। तो 1/3 फूड तो वेस्ट हो रहा है। फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक ये जो पूरा चेन है, यहाँ हर जगह वेस्टेज हो रहा है। इट सेज दैट थ्रू आउट द सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल प्रोडक्शन टू फाइनल कंजम्पशन द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन बाय 45%। तो वेस्टेज के कारण लैंड का भी डिग्रेडेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो लैंड आप यूज़ कर रहे हो उससे जो मिल रहा है प्रोडक्शन वो तो वेस्ट हो रहा है। तो 45% लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? मेनली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो प्रोडक्शन करने के लिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सेकेंडली, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। देखो 1/3 फूड वेस्ट हो रहा है, मतलब 1/3 फूड आप कम बना सकते हो, कम प्रोड्यूस कर सकते हो टू मीट योर नीड्स, बट बिकॉज ऑफ दिस वेस्टेज यूर डिमांड इज हाई। व्हेन डिमांड इज हाई, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आएगा, ग्राउंड वाटर का ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो उससे लैंड का डिग्रेडेशन भी बढ़ेगा। तो ये वेस्टेज के कारण जो सोर्स में जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसमें ये इल इफेक्ट दिख रहे हैं कि लोग फास्ट प्रोड्यूस करने के लिए अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा।
The energy spent over wasted food results in about 3.5 billion tons of carbon dioxide production every year. ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा केमिकल, ना, ज़्यादा एक्सट्रैक्शन, ज़्यादा मशीनरी, सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही है, जबकि उससे आने वाला फूड में 1/3 वेस्टेज हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा है? 3.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है सिर्फ वेस्टेज के कारण। डीके ऑल्सो लीड्स टू हार्मफुल एमिशंस ऑफ अदर गैसेस इन द एटमोसफियर। जो फूड वेस्ट होता है उसका जो डीके होता है उससे भी तो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं एटमोसफियर में। एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म्स इज क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी। तो फूड सफिशिएंसी चाहिए हमें और फूड सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। तो इसके लिए जहाँ जहाँ हो सके इन ऑल फॉर्म्स, वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म्स, यहाँ पे जो हो रहा है, 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 जहाँ जहाँ फूड वेस्टेज हो रहा है उसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। Okay, that is critical for sufficiency and sustainability of the food. Question: most logical and rational inference क्या है? The current methods of food distribution are solely responsible for the loss and wastage of food. solely नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है, कंजम्पशन में भी हो रहा है वेस्ट, प्रोडक्शन में भी हो रहा है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं हो रहा है। तो दे आर नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल, एक्सट्रीम वर्ड, रॉन्ग। लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज, बिल्कुल सही। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है ना कि लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूरे स्टैटिस्टिक भी दे रखे हैं उसने, के कारण भी दे रखे। रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट, तो ये भी सही है क्योंकि लॉस ऑफ फूड के कारण कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वेस्टेड फूड के कारण कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, तो अगर आप रिड्यूस करोगे तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा, तो ये भी सही है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल, नहीं, इससे कोई बात नहीं की गई है। आंसर इज 2 and 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द अबोव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. The food distribution mechanism needs to be reimagined and made effective to reduce the loss and wastage of food. Correct, because यहाँ पे बोला है कि all forms, wastage of food in all forms is critical, और यहाँ पे क्या बोला है कि इनिशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन, हर जगह कंजम्पशन तक हर जगह वेस्ट हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म रीइमेजिन करोगे, मेड इफेक्टिव करोगे, तो लॉस रिड्यूस हो सकता है। तो फॉर मी दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Ensuring the reduction of wastage and loss of food is a social and moral responsibility of all citizens. ये डायरेक्टली नहीं कहा गया है लेकिन अजम्पशन किया गया है, राइट, क्योंकि दिस होल पैराग्राफ इज ऑल अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ फूड वेस्टेज, तो इट इज एश्यूम्ड दैट कि वेस्टेज नहीं होना चाहिए। So it is a social and moral responsibility of every citizen that there should not be any wastage. The answer to this question is C, both 1 and 2. Okay, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट मुझे ट्रू लगते हैं पैराग्राफ के हिसाब से। नेक्स्ट, अनलाइक रिलीजन एंड साइंस पोएट्री डज नॉट पोजिट, पोजिट मतलब प्रपोज करना या प्लेस करना या पोजिशन करना, और एक्सपेक्ट एनी बिलीफ इन एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो रिलीजन और साइंस एब्सोल्यूट ट्रूथ को ढूंढते हैं, पोएट्री ऐसे कुछ नहीं करता है। Those forces or individuals who claim to have absolute truths in their grasp tend to turn dictatorial and tyrannical. तो ऑथर ये कहना चाहता है कि जो क्लेम करता है कि मेरे पास एब्सोल्यूट ट्रूथ है, मेरे पास अंतिम सत्य है, वो टायरेनिकल बन जाने का चांसेस होता है या फिर वो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी में बदल जाने का चांसेस होता है। दैट इज व्हाट author is trying to say here, that they tend to become dictatorial and tyrannical. Truth usually does not admit any contradictions or imperfections. Usually जो सत्य है वो किसी विरोधाभास को या फिर इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता या एडमिट नहीं करता। इट इज़ यूनिटेरियन। यूनिटेरियन मतलब एक अंतिम सत्य है, वही सत्य है,
कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं है. दैट इज़ हाउ द ट्रूथ इज प्रोजेक्टेड. इट इज़ देयरफॉर नॉट ऑफ मच यूज फॉर पोएट्री. इसलिए पोएट्री में ट्रूथ का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, क्योंकि पोएट्री अबाइड्स बाय द प्लूरलिटी ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस. प्लूरलिटी मतलब अनेकता, राइट. तो पोएट्री अनेकता में विश्वास रखती है, उसके लाइफ के और एग्जिस्टेंस के अस्तित्व के अनेक रूपों में विश्वास रखती है, उसके अनेकता में बिलीव करती है. परहैप्स पोएट्री फॉलोज रियलिटी विच इज़ प्लूरल, एनाक्रोनिस्टिक, फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस. तो पोएट्री अप्रिशिएट करती है, फॉलो करती है किसे? प्लूरलिटी को, मतलब अनेकता को. एनाक्रोनिस्टिक मतलब ओल्ड फैशन्ड या फिर आउट ऑफ टाइम. ओल्ड फैशन से ज़्यादा है आउट ऑफ टाइम, मतलब वो उस टाइम से रिलेवेंट नहीं है. ठीक है, इसको भी मान लेती है. और फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो हो ही सकता है पोएट्री में. अगेंस्ट द टायरनी ऑफ ट्रूथ, पोएट्री रिमेन्स अ पार्टीजन. पार्टीजन मतलब सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रियलिटी. तो टायरनी ऑफ ट्रूथ, अगर ट्रूथ टायरानिकल बन जाए, डिक्टेटोरियल बन जाए, तो उसके अगेंस्ट डेमोक्रेटिक रियलिटी के लिए पोएट्री सपोर्ट करती है. अगेंस्ट द एरोगेंस ऑफ पावर, वेल्थ एंड हायरार्की, पोएट्री प्रपोजेस बोथ ह्यूमिलिटी एंड डिफायंस. तो पावर, वेल्थ मतलब सत्ता संपत्ति के खिलाफ पोएट्री क्या करती है कि नम्रता, ह्यूमिलिटी को और डिफायंस को सपोर्ट करती है. ओके, उसको अपोज करती है पावर हायरार्की को. दिस इज द पैराग्राफ. क्वेश्चन क्या है? मोस्ट लॉजिकल रैशनल मैसेज कन्वेड इन द अबव पैसेज. इट इज द पोएट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच रिकॉग्नाइजेस एंड एक्सेप्ट्स इनपरफेक्शंस इन ह्यूमंस. बिल्कुल सही है. यहाँ पे क्लियरली कहा है कि ट्रूथ को कॉन्ट्राडिक्शन और इनपरफेक्शन पसंद नहीं है, और पोएट्री को कॉन्ट्राडिक्शंस, ये वाला, राइट, फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, ये सारी चीज़ें पसंद है. और भी देखते हैं इससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल पूछा है तो पढ़ना तो सब है. ट्रूथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजन एंड पोएट्री इज एनाथेमा टू ट्रूथ. एनाथेमा मतलब एनिमी, अपोजिट. तो इसमें ये तो नहीं कहा है कि पोएट्री ट्रूथ को अपोजिट है. पोएट्री ट्रूथ के मिसयूज को अपोज करती है. वो ये नहीं कहते कि मुझे ट्रूथ नहीं चाहिए, ये कहते कि मुझे ट्रूथ का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं चाहिए, टायरानी नहीं चाहिए, मुझे डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए. ठीक है, तो ये ट्रूथ के खिलाफ तो नहीं है. यानी यहाँ पे कहा है कि इट इज़ एनाथेमा टू ट्रूथ, इसलिए गलत है. Poetry is romantic, imaginary and is about feeling, whereas science and religion are about truth. ऐसे तो ये सही है, लेकिन पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, राइट, क्योंकि फीलिंग की बात तो नहीं की है. ठीक है, रोमांस और इमेजिनेशन की भी बात नहीं की है. इन अ वर्ल्ड ऑफ वायोलेंस, टायरनी एंड बाइगोट्री, पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस. ये भी मुझे सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लास्ट सेंटेंस में बोला है कि अगेंस्ट द टायरनी ऑफ ट्रुथ, पोएट्री रिमेन्स अ पार्टीजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक रियलिटी. Against the arrogance of power, wealth and hierarchy, poetry proposes humility and defiance. Okay, तो टायरानी, बाइगोट्री, वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पोएट्री काम करती है. ऊपर से लेके नीचे तक ये जो पैराग्राफ का कंक्लूजन है, इसलिए मैं इसे मोस्ट लॉजिकल रैशनल मैसेज मानूंगा, ऑप्शन डी को. okay? ए सही है, लेकिन इट इज़ जस्ट वन फैक्ट अबाउट पोएट्री एंड ट्रूथ, सॉरी, पोएट्री एंड साइंस एंड रिलीजन. ओके, उसे मैं मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज नहीं कहूँगा. क्या ऑथर ये कहना चाहता है कि पोएट्री ह्यूमन इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करती है और साइंस और रिलीजन नहीं करता? ये कहता तो है, लेकिन वो सेंट्रल आइडिया या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट. The flower was not invented to please us. It flaunted its petals and sprayed its perfume to attract an insect. तो जो फूल है वो हमें प्लीज करने के लिए नहीं बनाया गया है. उसकी जो पंखुड़ियाँ है, पेटल्स है, और उसका जो सुगंध है, परफ्यूम है, उससे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं. वो उसका मेन पर्पज है. द इंसेक्ट कैरीज द पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर सो दैट पोलन इज नॉट कैरीड अवे बाय विंड एंड दज नॉट वेस्टेड. तो एक जगह से दूसरे जगह इंसेक्ट जब जाते हैं तो पोलन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो वेस्ट नहीं होता है.
विंड से कैरी अवे नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है. वॉट वी कॉल अ फ्लावर्स ब्यूटी इज मियरली अ बाय प्रोडक्ट एंड अ ह्यूमन इन्वेंशन. वो फ्लावर की जो सुंदरता है वो एक बाय प्रोडक्ट है, वो उसका मेन पर्पस नहीं है. सुंदर दिखना फ्लावर का मेन पर्पस नहीं है. उसका जो परफ्यूम है, उसका जो कलर है, उसके जो शेप है, पेटल्स है, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं जो पोलन कैरी करते हैं एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर की ओर. तो उसका जो ब्यूटी है वो एक बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप बन गया. और वो ह्यूमन इन्वेंशन है, मतलब लोगों ने सोचा. फ्लावर तो नहीं सोच रहा ना कि मैं कितना सुंदर हूँ, या मैं सुंदर बनने के लिए वो फ्लावर ये सब चीज़ें नहीं कर रहा है, कि वो अपनी अलग पर्पज़ के लिए कर रहा है. फ्लावर्स ब्यूटी इज़ ह्यूमन इन्वेंशन, और वो एक बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप बन रहा है. द परफ्यूम इज़ नॉट देयर टू प्लीज अस. हमारे लिए फ्लावर का सुगंध नहीं है. इट प्लीजेस अस बिकॉज इट इज़ देयर. वो हमें खुश करता है क्योंकि वो है, लेकिन हमें खुश करना उसका पर्पज़ नहीं है. एंड वी हैव बिन कंडीशन टू इट. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग अजम्पशंस. The author of the passage believes that flowers are creations of nature's luxury. No. नेचर की लग्जरी और फ्लावर के क्रिएशन के बारे में कुछ नहीं कहा है, फ्लावर के पर्पज के बारे में कहा है. द ऑथर ऑफ द पैसेज डज नॉट बिलीव इन यूजफुलनेस ऑफ फ्लावर्स एक्सेप्ट एज थिंग ऑफ ब्यूटी. ये तो बिल्कुल उल्टा ही कह रहा है. वो तो बोल रहा है कि फ्लावर का थिंग ऑफ ब्यूटी करके यूजफुलनेस नहीं है, वो तो ह्यूमन इन्वेंशन है. का पर्पज है पोलन एक जगह से दूसरी जगह जाना, ज़्यादा फ्लावर्स बनाना, या फ्लावर से फल बनाना. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट. इन अ रोबस्ट डेमोक्रेसी, reality, however inconvenient it may be, finds its expression both in the speech of political leaders and the other social forms of assertion. तो बोलते हैं जहाँ पे अच्छी डेमोक्रेसी है ना, वहाँ पे सच्चाई, द रियलिटी, चाहे वो कितनी भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी डिस्टर्बिंग क्यों ना हो, चाहे कितनी भी डिसलाइकेबल क्यों ना हो, उसका एक्सप्रेशन होता ही है. कहाँ पे होता है? बोथ इन स्पीच ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स. पॉलिटिकल लीडर्स के स्पीच में वो सच्चाई दिखा सकते हैं. एंड अदर सोशल फॉर्म्स ऑफ असर्शन. और बाकी जगह जहाँ जहाँ सोशल फॉर्म्स में डिस्कशन होगा, सोशल सेटिंग्स में, वहाँ पे आप एक अच्छी डेमोक्रेसी में उसको असर्ट कर सकते हो जो भी रियलिटी है. ओके, चाहे वो कितनी भी बुरी ना हो, चाहे वो कितनी भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो. द एग्जिस्टेंस ऑफ द रियल हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट. तो रियलिटी का एग्जिस्टेंस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए. बोथ थ्रू इट्स सर्कुलेशन इन एंड बाय द मीडिया एज वेल एज इट्स आर्ग्यूमेंटेटिव आर्टिकुलेशन इन डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी. का मतलब है कि सच ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. कहाँ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? मीडिया में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ओके. और उसके ऊपर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में आर्टिकुलेशन, आर्ग्यूमेंट्स करना पॉसिबल होना चाहिए. उसके ऊपर डेलिब्रेशन पॉसिबल होना चाहिए. डेलिब्रेशन मतलब डिस्कशन, डिबेट. डिबेट वाला डिस्कशन को डेलिब्रेशन कहते हैं, चर्चा. ओके. तो फ्रीली, मुक्त से ही चर्चा पॉसिबल होनी चाहिए सच के ऊपर, क्या सच है क्या झूठ है, या फिर कितना सच है. और मीडिया भी उसे बिल्कुल किसी तोड़े मरोड़े सच को सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए एक रोबस्ट डेमोक्रेसी. नॉर्मेटिवली रिस्पॉन्सिबल मीडिया through its communication effect has the responsibility to circulate the content of reality without distortion. तो एक अच्छी मीडिया, रिस्पॉन्सिबल मीडिया, सच को डिस्टॉर्ट बिना किए हुए लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, करना चाहिए. क्वेश्चन क्या कहता है? क्रक्स ढूंढना है. रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी. बिल्कुल सही. क्रक्स पूछा है, मतलब इसका सेंट्रल पूछा है. मैं सारे पढ़ूंगा क्योंकि ये तो है, ओके, लेकिन ये सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबल मीडिया की बात कर रहा है. आगे क्या कुछ ऐसा है जो इससे बेटर है? फेक न्यूज सिम इनहेरेंट इन द लाइफ ऑफ एन आइडियल डेमोक्रेसी. ये तो बिल्कुल गलत है. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन आइडियल डेमोक्रेसी. ये डिबेटेबल है. इररिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर्स कैनॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड इन एन आइडियल डेमोक्रेसी. बिल्कुल नहीं. कंट्रोल तो किए जा सकते हैं, खाली उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. अब ए है क्या सी है? ठीक है. तो यहाँ पे बोला है देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन. सो फॉर मी दिस इज काइंड ऑफ एक्सट्रीम वर्ड. ऑथर ने ऐसा तो नहीं कहा ना कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए मीडिया पे, जो चाहे बोल दो, जितना चाहे बोल दो, जैसा चाहे बोल दो.
ऐसा तो नहीं कहा है। तो अल्दो दिस इज a kind of a side message, because I think all other are wrong, I will mark this as an answer, that this is the crux of the passage. Next, nowadays there is a growing trend to use interconnected home devices. As consumers increasingly network their homes, the connected home device manufacturers and service providers will seek to overcome. अच्छा, ये इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, जैसे आप मोबाइल से फैन ऑफ कर रहे हो ना, लाइट ऑफ कर रहे हो, फ्रिज कनेक्ट हो रहा है, गैस कनेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों की बात हो रही है। दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड होम डिवाइस। जैसे कंज्यूमर ज़्यादा होम में नेटवर्किंग कर रहा है, द कनेक्टेड होम डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स विल सीक टू ओवरकम थिन प्रॉफिट मार्जिन्स बाय गैदरिंग मोर ऑफ आवर पर्सनल डेटा एंड विथ और विदाउट आवर एग्रीमेंट। तो बिकॉज दीज आर इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, जो इस डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरर है वो अपने परमिशन से या परमिशन के बिना अपने बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं। टर्निंग द होम इनटू कॉर्पोरेट स्टोर फ्रंट, जैसे आपका घर कोई एक उनके लिए एक स्टोर हो जहाँ से उनको डेटा जा रहा है। कॉर्पोरेट मार्केटियर्स विल हैव पावरफुल इंसेंटिव्स टू ऑब्जर्व कंज्यूमर बिहेवियर टू अंडरस्टैंड द बाइंग नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ देयर डिवाइस ओनर्स। तो मार्केट को मार्केट रिसर्च करने के लिए अपने आप ही डेटा मिल रहा है कि उनके डिवाइसेस जो कनेक्टेड है वो किस तरह से यूज़ किए जा रहे हैं, कितने यूज़ किए जा रहे हैं, क्यों यूज़ किए जा रहे हैं, कौन से समय पे यूज़ किए जा रहे हैं, राइट। इसके ऊपर उनको जो एक आपके बिहेवियर का डेटा मिलेगा वो अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज। Knowledge of consumer behavior leads to more capital expenditure in manufacturing sector. ठीक लग रहा है, देखते हैं। Knowledge of consumer behavior stimulates the growth of commerce and trade and thus helps in overall economic development of the country. कंट्री विंट्री के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है। Interconnected devices give a lot of comfort to home users and improve the overall quality of life. सही है, लेकिन पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है, ओके। इसलिए जो लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखने की कोशिश करते हैं उनका तो ये क्वेश्चन में, ये पेपर में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादातर सही दिए गए हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा लिखा है कि पैराग्राफ के हिसाब से लिखो, पैराग्राफ पढ़ना ज़रूरी है। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस कैन बी एट सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर्स में हैव प्राइवेसी रिस्क। ये बिल्कुल सही है, मैंने कहा पहला भी सही है। नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो ये सही तो हो सकता है लेकिन थोड़ा फार फेस्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है कि ये सारी चीज़ों से उसको नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर तो मिलेगा, लेकिन इससे कंपनीज क्या करेंगी, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि वो ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेगी ना। उसमें सिर्फ बोला है कि वो थिन मार्जिन को एड्रेस करेगी, थिन प्रॉफिट मार्जिन्स को ओवरकम करेगी। अब थिन प्रॉफिट मार्जिन को ओवरकम करने के कई तरीके हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बढ़ा दे। हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसे सोचूं कि देखो मैं ये डेटा का प्रोडक्ट डेवलपमेंट करूँगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया, या मैं ये कहूँगा कि इस डेटा की वजह से मेरा सेल्स बढ़ गया, मुझे प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाना है, मुझे और एक प्लांट डालना पड़ेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया। लेकिन ये थोड़ा फार फेस्ट है ना, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। पैराग्राफ में डायरेक्टली ऐसा मुझे इन्फ्रेंस या प्रैक्टिकल मैसेज इम्प्लाइड ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि वो जो ये इनसाइट मिलेंगे उससे क्या करेंगे कंपनियाँ। इसलिए मैं इसको डी मार्क करूँगा, जो क्लियरली मैं पैराग्राफ से इन्फ्रेंस निकाल सकता हूँ, मैसेज निकाल सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन ग्रोथ इन्वॉल्व्स rethinking growth strategies with regard to impacts on environmental sustainability and environmental resources available to poor and vulnerable groups. तो ये तो कई बार पता है हमें कि ग्रीन ग्रोथ मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ, जो गरीब लोग हैं उनके पास जो रिसोर्सेस है उसको कंसीडर करके की जाने वाली ग्रोथ को ग्रीन ग्रोथ या सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं। In rethinking growth, we need to focus on the current reality of a resource constrained world. तो जब हम ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तो हमें रिसोर्स का जो कंस्ट्रेंट है, अभी कमी जो है रिसोर्स की, उस
दुनिया में उसको अकाउंट में लेके ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा. Resource intensive and in particular energy intensive processes will need to make way for more efficient and resource frugal development strategies. तो ऐसी ग्रोथ जिसमें मुझे बहुत सारा रिसोर्सेज कंज्यूम करना पड़ सके, राइट, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस, डीजल, राइट, और मिनरल प्रोडक्ट, उसको यूज करने का, या फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली, ठीक है, उसको यूज करके मुझे कितना ग्रोथ करना है, राइट, या फिर जितनी जो जिसमें ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करने में मुझे नेचुरल रिसोर्सेज लगते हैं. तो ऐसी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के बजाय मुझे ज़्यादा इफ़िशियंट और रिसोर्स फ्रूगल डेवलपमेंट, जहाँ पे कम रिसोर्सेज लगे, फ्रूगल मतलब कंजूस, ऐसे स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचना पड़ेगा. इफ़ वी आर टू अवॉइड एन इकोनॉमिक डेड एंड, तो इसकी वजह से अवॉइड होगा क्या, इकोनॉमिक डेड एंड, मतलब एक जगह जाके हमारे रिसोर्सेज ही ना खत्म हो जाए, या ऐसी जंक्चर पे मैनकाइंड आ जाए जहाँ पे हम और ज़्यादा रिसोर्स नहीं निकाल सकते नेचर से, और a world in which only a small elite is able to enjoy affluence in the midst of sea of poverty. तो फिर, या फिर सारी सत्ता, सारी डेवलपमेंट, सारा फैसिलिटीज़ कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आ जाएगा जो बहुत ज़्यादा अमीर है, एफ्लुएंट है, और उनके आजू बाजू में ज़्यादा गरीबी फैल जाएगी, मतलब जो इकोनॉमिकल डिवाइड है वो बढ़ जाएगा. तो ऐसी दुनिया तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए हमें एनर्जी इफिशिएंट, एनर्जी फ्रूगल, रिसोर्स फ्रूगल डेवलपमेंट की ज़रूरत है. दिस इज द पैराग्राफ. क्रक्स पूछा है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इनिमिकल, इनिमिकल मतलब अपोजिट या एनिमी जैसा, लाइक एनिमी, टू आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग अ हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ. ऐसे तो नहीं कहा है ना, जीडीपी ग्रोथ नहीं चाहिए, ये नहीं कहा है, हमें ग्रोथ चाहिए लेकिन उसे सस्टेनेबिलिटी करना है, वो अपोजिट नहीं है ग्रोथ के, ठीक है. हमें यह देखना है कि वो कोई एग्जिस्ट कैसे करे, ऐसी ग्रोथ जीडीपी की कैसी करे जो रिसोर्स इफिशिएंट हो. तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज नॉट इनिमिकल, मतलब अपोजिट नहीं है, दुश्मन नहीं है. दिस इज रॉन्ग. पॉवर्टी इरेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉन्सिक्वेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. बिल्कुल भी नहीं, ये तो एनवायरमेंट बचाने की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि पॉवर्टी इरेडिकेशन होगा नहीं जब तक ऐसी ग्रोथ नहीं करेंगे जो सस्टेनेबल नहीं है. तो ये स्टेटमेंट तो गलत है. मेंटेनिंग हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इज नाउ अ प्री रिक्विजिट फॉर अचीविंग अ स्टेडी, सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. ये मुझे बिल्कुल सही लगता है. इंक्लूसिव मतलब जो सारों को इंक्लूड करे, गरीबों को करे, अमीरों को करे, आदिवासियों को करे, शहरियों को करे, और जो स्टेडी हो, सफिशिएंट हो, और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स उसके बहुत ज़्यादा हाई हो. तो ये बहुत सही लग रहा है पैराग्राफ के हिसाब से. With large populations, rampant poverty, and limited resources of today's world, environmental degradation cannot be prevented and inequalities are inevitable. पैराग्राफ के opposite बात कर रहे हैं. Answer is option number C. Next, when an international team of scientists pumped a carbon dioxide and water mix into underground basalt rocks, मतलब CO2 और water इसका मिक्स करके उसने बेसॉल्ट रॉक पे डाल दिया. बेसिक केमिस्ट्री टू ओवर, तो केमिस्ट्री तो बनी थी. एसिडिक मिक्सचर डिजॉल्ट रॉक्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड फॉर्म लाइमस्टोन. तो ये जो एसिडिक, अब हमने ज्योग्राफी में सीखा है, इससे क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से रॉक डिजॉल्व होते हैं, उनका रिंग होता है ना. तो वो कह रहा है कि इसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकल गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, और इससे लाइमस्टोन बन गया, तो इससे बनेगा, ठीक है, लाइमस्टोन. बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू स्टोन, एक्सक्लेम्ड द साइंटिस्ट. तो साइंटिस्ट खुश हो गए, बोले ये तो अच्छी बात है कि CO2 से मैंने लाइमस्टोन बना लिया. CO2 कम हो गया और लाइमस्टोन बढ़ गया, तो CO2 गॉट कन्वर्टेड इनटू स्टोन. ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल सजेशन. It is a cheap and practical method to produce limestone at commercial level for building purposes. बिल्कुल नहीं, बोला तो है लाइमस्टोन बनेगा, लेकिन कमर्शियल लेवल पे बनेगा, बिल्डिंग पर्पजेस के लिए बनेगा, इसका कोई कंक्लूजन पैराग्राफ से हम नहीं निकाल सकते. दिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. बिल्कुल सही.
इससे कार्बन कम हो रहा है, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कार्बन कम करने का प्रोसेस। तो ये एक प्रैक्टिकल सजेशन हो सकता है। बेसाल्ट रॉक कैन बी मेड अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल्स बाय दिस मेथड। बिल्कुल नहीं। ठीक, क्योंकि इसका क्वांटिटी कितना बेसाल्ट रॉक में कितना डालने से कितना एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, और ये वैसे भी मिनरल के फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये तो लाइमस्टोन के फॉर्म में आ रहा है। सो इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर स्टोन। इट इज़ नॉट दैट कि उसमें से कैल्शियम मैग्नीशियम आप निकाल रहे हो या उसके कोई दूसरे और मिनरल कंपाउंड निकाल रहे हो। Okay, so this cannot be a practical direct suggestion from this passage. Good rock dissolving acid can be produced by mixing carbon dioxide and water। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हमें पता है कि कार्बोनिक एसिड का बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इट इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट एसिड। तो उसमें गुड रॉक डिजॉल्विंग एसिड इससे ज़्यादा बेहतर कई हो सकते हैं। तो आई थिंक आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, दैट ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक अच्छा मेथड बन सकता है। नेक्स्ट, geographers analyzed 175 satellite images of ocean color, which is an indicator of phytoplankton productivity at the ocean surface, and found that giant icebergs are responsible for storing up to 20% of carbon in the southern ocean। तो साइंटिस्ट ने या जियोग्राफर्स ने क्या किया कि 175 सैटेलाइट इमेजेस को लिया ओशन कलर से। ओशन कलर क्या दिखाता है कि फाइकोप्लैंक्टन की प्रोडक्टिविटी दिखाता है ओशन सरफेस के ऊपर। तो ब्लू है, ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, जो भी है उस पर से साइंटिस्ट कंक्लूड कि वहाँ पे फाइकोप्लैंक्टन की प्रोडक्टिविटी, उनका नंबर क्या है, डेंसिटी क्या है, एंड फाउंड दैट द जायंट आइसबर्ग्स आर रिस्पॉन्सिबल। और वो प्रोसेस में उन्हें पता चला कि उसमें जो जायंट आइसबर्ग्स होते हैं सदर ओशन में, उसमें 20% ऑफ कार्बन स्टोर किया जाता है। ठीक है, 20% ऑफ कार्बन आइसबर्ग में स्टोर किया जाता है। The researchers discovered that melting water from giant iceberg, which contains iron and other nutrients, supports hitherto unexpectedly high levels of phytoplankton growth। तो उन्हें ये भी डिस्कवर हुआ रिसर्चर को कि जब ये आइसबर्ग मेल्ट होते हैं तो इसमें से अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट निकलते हैं, आयरन जैसे, कि जो फाइकोप्लैंक्टन की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तो आइसबर्ग का पिघलना फाइकोप्लैंक्टन की ग्रोथ के लिए अच्छा है। ओके, assumptions क्या क्या बनाए। जायंट आइसबर्ग्स हैव अ बेरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड फूड चेन्स ऑफ सदर्न ओशन। बिल्कुल सही, फाइकोप्लैंक्टन फूड चेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है, और जायंट आइसबर्ग का इस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है क्योंकि ये जो मेल्ट होते हैं तो इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मेल्टिंग ऑफ जायंट आइसबर्ग्स कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट वर्ल्ड फिशरीज। सही हो सकता है, लेकिन पैराग्राफ में इसका कोई मेंशन नहीं है, मतलब हमें पता है कि ये सही है। ओके, कि जब आइसबर्ग मेल्ट होंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, लेकिन दिस पैराग्राफ इज नॉट अबाउट क्लाइमेट चेंज एट ऑल। तो मैं सेकंड को गलत मानूंगा, आंसर ए लेके आगे चलूंगा। नेक्स्ट वन, इवोल्यूशन हैज एंडोर्ड कैटरपिलर्स दैट फीड ऑन कॉर्न विथ यूनिक एबिलिटी। दे कैन इंड्यूस द प्लांट टू टर्न ऑफ इट्स डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट प्रेडेटर्स। कॉर्न के ऊपर जो कैटरपिलर है ना, उनके में एक यूनिक एबिलिटी है कि वो कॉर्न का जो डिफेंस है अगेंस्ट इंसेक्ट्स, उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं, उसको नलीफाई कर सकते हैं। दिस हेल्प्स कैटरपिलर्स टू ईट मोर एंड ग्रो फास्टर। बिल्कुल नेचुरल है, एक बार वो डिफेंस टर्न ऑफ हो गया तो कैटरपिलर आराम से रहते हैं कॉर्न पे और खा खा के मस्त हो जाते हैं, ग्रो फास्ट हो जाते हैं। द एजेंट दैट कॉजेज दिस इफेक्ट इज द कैटरपिलर्स फीसिस और फ्रास। तो कैटरपिलर के जो वेस्ट मटेरियल है, राइट, फीसिस और फ्रास है, उसमें ये एजेंट छुपा हुआ है जो इस कॉर्न के डिफेंस को तोड़ मरोड़ के रख देता है। ठीक है, कैटरपिलर मतलब पूरा कैटरपिलर नहीं करता है, इसमें का एक जो एजेंट है वो उसको टर्न ऑफ। द फाइंड कुड थ्रो अ न्यू लाइट ऑन कंपाउंड्स एसोसिएटेड विथ प्लांट रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो ये जो फाइंडिंग है, ये एक नई रोशनी डाल सकता है, किस पे डाल सकता है कि प्लांट का जो
फंगाई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो रिस्पॉन्स है प्लांट का, उनको फंगाई और बैक्टीरिया को, उस पे एक नई लाइट डाल सकता है ये रिसर्च। ओके ओके। तो लॉजिकल रैशनल प्रैक्टिकल मैसेज क्या है? फार्मर्स कैन यूज कैटरपिलर्स टू फीड ऑन वीड्स इन देयर क्रॉप फील्ड्स प्लांटेशन। बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली कॉर्न की बात की जा रही है, कर रही है पैराग्राफ, तो उसको वीड पे यूज़ नहीं कर सकते। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स। अब ये फंगाई और बैक्टीरिया जो है ये है माइक्रोब्स। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि इट कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि इट कैन थ्रू अ न्यू लाइट डाल सकता है। उसका आउटकम क्या होगा, कि वो हेल्प करेगा नहीं करेगा, ये आगे की बात है, इसमें इसके बारे में पैराग्राफ में कुछ नहीं बताया गया है, तो इसलिए मैं इसको भी गलत साबित करूँगा। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स। आई टेंड टू थिंक दैट दिस इज करेक्ट। यू नो वाई? बिकॉज एक तो ये जो वेस्ट है ना, दैट इज अ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, वो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है मैटर। ओके, ये मैटर क्या कर रहा है कि कॉर्न का डिफेंस टर्न ऑफ कर रहा है, तो फिर उसका यूज करके मैं ऐसा पेस्टिसाइड शायद डेवलप कर सकूं जो बाकी के पेस्ट को वहाँ पे आने ना दे, तो प्लांट रिस्पॉन्स को मैं स्ट्रॉन्ग कर सकूं पेस्ट के खिलाफ। तो दिस इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ व्हाट कैन बी द आंसर। कैटरपिलर्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी प्रेडेटर्स ऑफ द अदर प्लांट पेस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। आई विल मार्क आंसर एज सी। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि बी और सी में कन्फ्यूजन हो सके, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर सी होना चाहिए, बी नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि थ्रो लाइट, जो फेनोमेना, जो प्रॉपर्टी इस एजेंट की बताई गई है, वो यूज करके मैं एक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स बिल्कुल बना सकता हूँ। नेक्स्ट, कन्वेंशनल क्लासरूम्स बाय एम्फसाइजिंग फिक्स ड्यूरेशन ओवर लर्निंग इफेक्टिवनेस डिजाइन देमसेल्व्स टू वेरिएबल आउटकम्स। जो कन्वेंशनल क्लासरूम्स है, वो फिक्स ड्यूरेशन मतलब 1 घंटा, 45 मिनट, so many days of semester, so much of syllabus to be covered, इस तरह से सोचता है। ठीक है, वो लर्निंग इफेक्टिवनेस के बारे में नहीं सोच रहा है कि कितना इफेक्टिव हो रहा है मेरा टीचिंग। द टायरनी ऑफ द क्लासरूम इज दैट एवरी लर्नर इज सब्जेक्टेड टू द सेम सेट ऑफ लेक्चर्स इन द सेम वे फॉर द सेम ड्यूरेशन। तो लोग कितना समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं उस पर दिस क्लासरूम इज नॉट फोकसिंग। It is delivering same content for same duration to different set of people in the same way. In the end, a few learners shine, some survive, and the rest are left behind. कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं सीख के, कुछ ठीक ठाक सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ पीछे पड़ जाते हैं। After the fixed duration, the classroom model moves on with not a thought spared for those left behind. तो इनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। This is how we end up with 10% employability in our graduates after a decade and half of formal education. तो लगभग 15 साल के फॉर्मल एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद फिर भी इसमें से कितने ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल है? सिर्फ 10%। तो बेसिकली इट इज ऑल बिकॉज देर इज नो डिफरेंस बीइंग डन बिटवीन 3 सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स कि इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत अलग है, इसकी ज़रूरत अलग है, इसकी ज़रूरत अलग है, लेकिन हम सबको एक ही सिखा रहे हैं, एक ही टाइम के लिए सिखा रहे हैं और एक ही तरीके से सिखा रहे हैं। रिपीटिंग द सेम इनइफेक्चुअल स्क्रिप्ट इन द रियाम ऑफ स्किल एजुकेशन विल नॉट प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। अभी ये स्किल इंडिया, राइट, अभी फोकस आ रहा है स्किल एजुकेशन पे, तो अगर हमने यही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की तो फिर स्किल में भी कुछ नहीं होना है, ऐसे ही उसका आउटकम आना है कि कुछ लोग ठीक से सीख पाएंगे, ज़्यादातर लोग नहीं सीख पाएंगे। क्वेश्चन क्या है? मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड in conventional classroom learning the central goal is duration of learning rather than attainment of competency। बिल्कुल सही।
कन्वेंशनल क्लासरूम्स एनकरेज वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच एंड स्टैम्प आउट ऑल डिफरेंशिएशन। बिल्कुल सही। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आंसर इज बोथ 1 एंड 2। कोई डिफरेंस करता नहीं है कन्वेंशनल क्लासरूम, और फोकस रहता है उसका ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग पे रादर देन अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। जब आप अजम्पशन की बात करते हो तो ट्रू फॉल्स की बात करते हो कि बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ ये ट्रू फॉल्स हो सकता है, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। एज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन आवर कंट्री आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इंडिया डज नॉट नीड टू चेंज इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल गलत। वो तो पूरा उस पर हमला कर रहा है तुम एजुकेशन कन्वेंशनल, और बोल रहा है कि इससे एम्प्लॉयबिलिटी नहीं आ रही है, सिर्फ 10%। तो फिर ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं तो क्या हुआ, चेंज तो करना ही पड़ेगा। इवन विथ इट्स present conventional classroom system of education, India produces sufficient number of skilled workers to fully realize the benefit of demographic dividend। नहीं, ये तो बोलता है कि 10% एम्प्लॉयबिलिटी है, इज नॉट फुल यूटिलाइजेशन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, नाइदर 1 और 2। नेक्स्ट, when a child reaches adolescence there is apt to be a conflict between parents and the child। तो जब बच्चे एडोलसेंट बन जाते हैं, 13-14 साल से ऊपर है, टीनेज है ना, तो क्या बोलते हैं कि इट इज़ एप्ट टू बी कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। तो पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगता है। सिंस द लैटर कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी बाय नाउ क्वाइट कैपेबल ऑफ मैनेजिंग हिज ओन अफेयर्स, तो उनको लगता है कि वो अपने अफेयर्स, मतलब नॉट लव अफेयर्स बट मैटर्स, राइट, उनकी ज़िंदगी के जो भी फैसले हैं उसे लेने के लिए वो अपने आप को सक्षम समझते हैं, और वो समझते हैं कि मैं खुद सोच सकता हूँ, सकती हूँ, और आप मुझे सिखाओ मत। Okay. While the former are filled with parental solicitude, which is often a disguise for love of power। ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। इसमें कहता है कि जबकि पेरेंट्स वो सॉलिसिट करते हैं कि उनके मैटर में इन्वॉल्व हो, वो कभी कभी डिस्गाइज हो सकता है लव ऑफ पावर के लिए। मतलब वो आज तक तो वो बच्चे वही करते थे जो वो कहते थे, तो जब ये बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है तो उनको लगता है कि उनका पावर चला जा रहा है, तो उनको तो पावर से प्यार है बच्चों के ऊपर, तो वो उनके मैटर में इंटरफेयर करने की, उनको सलाह देने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स कंसिडर यूजुअली दैट द वेरियस मॉरल प्रॉब्लम्स विच अराइज इन एडोलसेंस आर पेक्यूलियरली देयर प्रोविंस। तो चल छोड़ दो, मैं बाकी के हर चीज़ें में नहीं कहूँगा, लेकिन जो मॉरल प्रॉब्लम्स है, राइट, चाहे वो फिर यू नो किसी भी एथिक्स रिलेटेड, मॉरल रिलेटेड हो, राइट, चाहे वो रिलेशनशिप पे हो, चाहे वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग जैसे हैबिट्स पे हो, राइट, कुछ भी हो, तो दे थिंक दैट कि इसमें तो मेरा ही चलेगा। यूजुअली दैट द वेरियस मॉरल प्रॉब्लम्स विच अराइज इन एडोलसेंस आर पेक्युलरली देयर प्रोविंस। ये मेरा इलाका है, इसमें तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। The options they express, however, are so dogmatic that the young seldom confide in them and usually go their own way in secret। तो इस सिचुएशन में जो ऑप्शंस, जो सॉल्यूशंस पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो इतने डॉगमेटिक होते हैं। डॉगमेटिक मतलब पुराने ज़माने वाले, पुरानी ख्यालात वाले, दकियानुसी लिखता हूँ, हिंदी में इसको कहते हैं दकियानुसी। ठीक है, तो ऐसे जो सॉल्यूशंस है वो बच्चों को पसंद नहीं आते, तो वो कई बार अपने पेरेंट्स को बताते ही नहीं थे कि उनके प्रॉब्लम क्या चल रहे हैं, और अपने अपने सीक्रेट वे में वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। दैट्स द पैराग्राफ। क्वेश्चन क्या है, अजम्पशंस देखना है। द एडोलसेंट डज नॉट फील कंफर्टेबल विथ हिज पेरेंट्स बिकॉज दे टेंड टू बी डोमिनेटिंग एंड असर्टिव। बिल्कुल ट्रू है कि वो, बच्चों को लगता है कि वो अपनी बात नहीं मानते, अपने आप को असर्शन एक्सरसाइज करते हैं बच्चों के ऊपर, राइट। द एडोलसेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स डज नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, ये तो नहीं कहा है। ठीक है, ये पैराग्राफ में ये नहीं कहा कि वो डिसरिस्पेक्टफुल है, वो कह रहे हैं कि हमें आपका सुझाव अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमको बताएंगे नहीं, क्योंकि आप फोर्स भी करते हो, डोमिनेट भी करते हो, और आपके ख्यालात भी दकियानुसी है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली।
Which of the following statements best reflects the central idea of the above passage? Parents in general may not be of much help when children are on their way to becoming adults. हो सकता है. When children reach adolescence, involvement of parents in their lives is unnecessary. ये तो नहीं कहा. Okay. इसमें ये कहा है कि एडोलसेंस में इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी है क्या अननेसेसरी है, इसकी चर्चा इस पैराग्राफ में नहीं की गई है. इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि वो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको ज़्यादा अच्छी तरह से वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका बच्चों को पसंद नहीं आता है. ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके बारे में पैराग्राफ कुछ नहीं कह रहा है. मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन प्रॉपरली, बिल्कुल भी नहीं. इन मॉडर्न सोसाइटीज एडोलसेंट्स टेंड टू बी स्टबॉर्न, डिसओबीडियंट एंड केयरलेस, बिल्कुल भी नहीं. ऐसा कुछ भी पैराग्राफ नहीं कह रहा है. तो आई विल गो बाय ऑप्शन नंबर ए कि देखो पेरेंट्स मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प, क्योंकि एक तो बच्चे नहीं बताते हैं और अगर बताया तो नहीं सुनते. ठीक है, तो may not be of much help. Next. Okay, so I think that was the last one. As I said, these paragraphs were not as straightforward as they were in last few years. तो आप में से कई लोगों को कई क्वेश्चन इसमें से डिबेटेबल लगे होंगे, कई क्वेश्चंस आप समझ नहीं पाए होंगे पैराग्राफ इटसेल्फ और ऑप्शंस में भी कंफ्यूज हुए होंगे. सो दैट इज़ क्वाइट नेचुरल, बट दिस एक्चुअली अंडरलाइंस द फैक्ट that you get around 26-27 questions on comprehension, and if you do even half of them correctly or choose the right ones for you and do them correctly, it will help you significantly to clear the CSAT. So this remains an important section of CSAT paper. So thanks for watching this. I'll see you in the next video. Thank you.